Good morning, students. Welcome. In the last lecture, we were talking about the Indian historiography, various ideological frameworks and all, colonial historiography. We are talking about the Orientalist historiography. Then we came to the nationalistic historiography, where we came to know about the English educated Indian historians to feel the need to restore the pride of the glory of the इंडियन कल्चर। मतलब इंग्लिश लोगों ने हमें इंडियन हिस्टोरियन को ये समझाया कि किस तरह इतिहास की गरिमा को, ग्लोरी को किस तरह बनाए रखनी चाहिए, रिस्टोर करनी चाहिए। देयर राइटिंग्स वेर ऑल्सो नोन एज द नेशनलिस्ट। उनकी जो राइटिंग्स थे, जो इंडियन हिस्टोरियंस की जो राइटिंग्स थे, वो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी के नाम से जाना जा रहा था। दे क्रिटिसाइज द प्रोड्यूस हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। जो क्रिटिसाइज किया मतलब उनकी आलोचना करते थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर ने इंडियन लोगों के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। The Indian historians wanted to create awareness among the Indian masses through their writings. तो वो क्या, इंडियन हिस्टोरियंस ने कोशिश की कि लोगों को जागरूक करे अपने राइटिंग से। इंडियन लोग जो मासेस मतलब द पीपल ऑफ इंडिया, उनको जागरूक करे और उनको समझाए कि इंडियन की कंट्रीज़ के रिच पास्ट क्या है, अपने देश जो है कितना समृद्ध है, कितना रिच है, एवरीथिंग। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस सेड टू सेक द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। उनको नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, अप टिल वी आर कंप्लीटेड ओवर हियर. Now we are going to study the Justice Mahadev Govind Ranade has explained the background of the rise of the Maratha Empire in great details in his book The Rise of Maratha Power. According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for its Maharashtra. ये भी कल हमने पढ़ा था कि जो मराठा पावर का जो ये गुस्सा जो बाहर आया, इट वॉज नॉट अ सडन वन, इट टुक सच लॉन्ग टाइम। उन्होंने जो कुछ देखा उसके बाद उसके ऊपर जो गुस्सा उनमें भरा पड़ा था, दैट केम आउट लाइक अ फायर. See, Rajwade is well known for his writing in Marathi on various subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. राजवाड़े का कहना क्या था कि हमें अपने इतिहास खुद लिखना चाहिए. उनका जो ये था, लिखने का ये था, इट वॉज अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड, languages related to linguistic means related to language, grammar, etc. He compiled and edited 20 volumes of मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने. That was that. He compiled and edited 20 volumes. उसके by his 22 volumes उन्होंने मतलब एडिशन बनाए मराठ्यांची इतिहासाची साधने. He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. He stated history is the all-inclusive image of the past society. मतलब उनका कहना ये था कि पास्ट में जो कुछ है, पास्ट सोसाइटी में जो वो सारे इमेजेस, सारे छवि वो अपने इतिहास में हैं. It does not include only the stories of the political images, conspiracies and the wars of seizing power. It insisted that history should be written only use of the authentic documentary sources. तो क्या बोल रहे हैं, इतिहास सिर्फ ये नहीं है पॉलिटिकल इमेजेस से रिलेटेड या कॉन्स्पिरेसी मतलब ये जाल बुनना होता था पहले के ज़माने में, किसी को मारना है, कॉन्स्पिरेसी करना है. तो नॉट ओनली दैट एंड ऑल, और द पावर्स के ऊपर नहीं है. ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली ऑन द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज. यानी जो भी सच्चाई है उसके ऊपर इतिहास लिखा जाना चाहिए. दैट वॉज हिज सेइंग. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प द ट्रिगरिंग ऑफ द independence movement of the Indian people against the British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance. Now,
Veer Savarkar has written a book that is The Indian War of Independence 1857 of the great importance, and that had a great importance. The nationalist historiography provided a momentum to the writing of the regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographic condition and the history of the South Indian region. Means it shows that the nationalist historiography helped in triggering the independence मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी थे उनकी जो लिखी हुई चीज़ें थे वो क्या कर रहे थे, लोगों को ट्रिगर करना, मतलब उनको बार बार याद दिलाते थे जो ब्रिटिशर्स जो अपने पर अत्याचार, इंडियन लोगों के पर अत्याचार जो करते थे उसके पर बार बार ट्रिगर करते ताकि वो लोग उनके खिलाफ खड़े हो उठे। तो वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने किताब में द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उसमें ऐसे सारे चीज़ें उन्होंने इन्वॉल्व किए, बताए, जिससे इसमें काफ़ी सारा प्रभाव लोगों पर पड़ा एंड इट हैड ए ग्रेट इम्पोर्टेंस। द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ द रिलीजियन हिस्ट्री। और ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी की वजह से क्या हुआ, रिलीजियस हिस्ट्री जो रिलीजियस से रिलेटेड हिस्ट्री जो इतिहास था उसके पर एक प्रभाव पड़ा, उसमें एक मोमेंटम आ गया, मतलब उसमें उसके बारे में भी लोग जानने लगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द अटेंशन ऑफ द हिस्टोरियंस वॉज ड्रॉन टू द जोग्राफिक कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन रीजन। इसकी वजह से क्या, नॉट ओनली जो इतिहास में मतलब जो राजा महाराजाओं के उनकी जो फेलियर्स हो या जो अचीवमेंट्स हो, नॉट ओनली दैट, इवन द जोग्राफिकल कंडीशन वॉज लुक, उस वक्त के जोग्राफिक कंडीशन क्या थे, जो जो रूलर्स वगैरह आके गए, जो इतिहास घटा उस वक्त के जोग्राफिकल कंडीशन क्या थे और साउथ इंडिया का क्या इतिहास है, ये भी हमें पता चलने लगा। हिस्टोग्राफी इन द post independence era, now along with the writing the dynastic history, the cultural, social, economic histories were also being written. Okay, now the changes, drastic changes came in the historiography, जहाँ पे सिर्फ राजा महाराजा के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखे, now it came totally, everything has been changed. Dynastic histories had come, the cultural, social, economic histories were also being written. सारे changes आने लगे और इसके बारे में भी हिस्ट्री लिखा जाने लगा। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा बिगिन टू फील द नीड ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, साइंस एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कल्चरल एस्पेक्ट। द हिस्टोग्राफी ऑफ दिस एरिया हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय द थ्री आइडियोलॉजी स्कूल, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सुबाल्टर्न हिस्ट्री, फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ये सारे इतिहास है जिसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम्स, कल्चरल एक्सपेक्ट सब बारे में लिखा गया है, या दे वर इन्फ्लुएंस इन द आइडियोलॉजी स्कूल्स। ना मार्क्स हिस्ट्री में देखो क्या है, द कंसर्न ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शंस, मोड्स ऑफ द प्रोडक्शंस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेर एट द सेंटर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मतलब इन्होंने जब हिस्ट्री ये लिखा था उसमें नॉट ओनली दैट, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस भी मेंशन किए गए, मोड्स ऑफ द प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें, एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेयर एट द इंडस्ट्रियल का जो रिलेशनशिप है ये भी मेंशन किया गया इन द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। द प्राइम फोकस वॉज टू एनालाइज एंड स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑन द पीपल। उनका क्या था, प्राइम फोकस था कि एनालाइज करना, तो स्टडी करना, और इम्पैक्ट ऑन द सोशल, लोगों की जो सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है हर एक इवेंट का, ये भी स्टडी करना था। दे स्टडी द ट्रांजेक्शन विद इन द कास्ट सिस्टम, जो ट्रांजेक्शन होता था, सी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडी द ट्रांजेक्शंस विद इन द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस आए थे उसको भी स्टडी करने के लिए उन्होंने ये किया। सॉरी। Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideology framework, scholars like Damodar Dharmanand Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder members of the Indian Communist Party. Primitive communism to slavery, the
book written by him represent Marxist historiography. Okay, the comrade Shripad Amrit Dange, the founder of Indian Communist Party. He was the founder of the Indian Communist Party. उन्होंने एक किताब लिखा प्रिमेटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, और ये एक एग्जाम्पल बन के रहेगा मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में. ओके, यू अंडरस्टूड दैट इज मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप. पहली बार इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी होते थे, इसके ऊपर लिखा जाता था. दैट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. एंड श्रीपद अमृत डांगे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी हु wrote about a book in the primitive communisms of slavery over there. Now, subaltern history. Subaltern history, that is the seeds of the subaltern history are found in the Marxist historiography. The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of the people in the society. एंटोनियो ग्राम्सी का क्या कहना था, दैट इट शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, एकदम बहुत निचले, डीप फ्रॉम द पीपल ऑफ द सोसाइटी. इसके बारे में इतिहास में हमें लिखना चाहिए. Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern histories. Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic social of the historiography. However, we may point out much before the onset of subaltern ideology, similarly thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao and Dada Saheb Ambedkar. Okay. Mahatma Phule unfolded the history of Shudra. Mahatma Phule unfolded the history of the Shudra, Ati Shudra communities in his book. Shudras of Ati Shudras were under the in this book of Gulamgiri. He drew attention to the exploitations of the women, Shudras, and the Ati Shudras under the name of the religion. मतलब उन्होंने अपने इसमें किताब में इन गुलामगिरी ड्रीव द अटेंशंस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, लोग औरतों को एक्सप्लॉयट किया करना, मतलब उनकी अच्छाई या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, दैट इज़ एक्सप्लॉयटिंग. शूद्रस का, इवन शूद्रस एंड आति शूद्रस वेर ऑल्सो देयर, ये सब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था. ये सब उन्होंने अपनी गुलामगिरी की किताब में मेंशन किया है महात्मा ज्योतिराव फुले ने. द टर्म शूद्र एंड अति शूद्र इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम. तो ये इसमें शूद्र और अति शूद्र में जो बॉटम मोस्ट रैंक, मतलब कास्ट सिस्टम में बहुत नीचे के लोग जो आते हैं, उनके बारे में सब मेंशन किया गया. द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. यू मैट हर्ड अबाउट द दलित कास्ट कम्स टू वेरी लोअर कास्ट एंड ऑल. तो द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कास्ट, जो उनके दलित लोगों के जो रोल था, इट वॉज सिग्निफिकेंट, जिसमें वेरियस कल्चर्स एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ये किया गया है, इनकी बातें वगैरह ये कर रहे थे, प्रभाव डाल रहे थे. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and the nationalist historiography. Dr. Baba Saheb Ambedkar, focusing on this fact, consistently wrote about it. Two of these books, Who Were the Shudras and The Untouchables, may be cited as an example of the history of the subaltern type. डॉक्टर बाबा साहेब ने क्या अपने बुक्स में Who Were the Shudras and The Untouchables wrote about the injustice done to the दलित. उन्होंने अपने इन किताबों में जो इनजस्टिस दलित के ऊपर किया जा रहा था उसके बारे में उन्होंने अपने सारे बात उसमें मत रखे थे. एंड देयर सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कल्चरल, उनकी बातें भी इन सब कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो है इंडिया के, उसमें उसको एक रूप देने में मदद हो गई.
Feminist history. Now see the feminist history. Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of the Indian history. As a result, the role and the achievement of the women in history remain neglected. You might be knowing that कि पहले से मर्दों के से हर एक चीज़ क्षेत्र में हम लोग पाए देखते हैं, सुनते आ रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो वुमेन्स जो है उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, उनका रोल के बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं. दे वर नेग्लेक्टेड. To highlight the fact of was the major task faced by the feminist historians. जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस थे, मतलब जो औरतों के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में लिखते थे, उनके लिए एक बड़ा सा ये था, व्हाट यू कैन से, एक अपने आप को प्रूव करने के लिए कि एक औरत की भी एक रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, या उनके जो भी देश की उन्नति में भी उनकी अपने एक रोल होता है. ये सब दिखाने के लिए एक मौका उन्हें इसमें मिला था, ताकि वो फीमेल्स को भी मेंशन करे कि फीमेल्स भी अपना रोल, अपने इसमें दायित्व, अपना रोल निभाती आ रही है. Also, it was important to study and compile the historical writings of women. It also necessary to rethink the women's positions in history. तो ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हमें सोचना चाहिए कि एक औरत का पोजीशन इतिहास में क्या है. इन सब चीज़ें में पहले नज़रअंदाज किया जाता था. सिर्फ जो मेल्स, जो भी उनके अचीवमेंट्स थे, वो सब ज़्यादा लाइट में या रोशनी में लाया गया है, उनके बारे में ज़्यादा लिखा गया है. जबकि जो औरतें जिन्होंने भी वो भी कोई ये बड़े कदम उठाए, उनके बारे में जानकारी हमें बहुत कम मिलती. तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने क्या किया, टू नो द रोल ऑफ द फीमेल्स ऑल्सो, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द, व्हाट आर द अचीवमेंट सम ऑफ द फीमेल had in the history, that is was also mentioned over here. Among women authors writing about the women in the 19th century, that is C. Tarabai Shinde was the foremost one. Now among the women authors we can find that ताराबाई शिंदे नाम के उन्होंने काफ़ी ये लिखा है औरतों के बारे में. शी wrote attacking the male dominating social systems and the caste system. उन्होंने क्या लोगों ये रोट अटैकिंग, मतलब मर्दों के ऊपर वार करते हुए उन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी है. डोमिनेटेड द सोशल सिस्टम, जो सोशल सिस्टम से उनके ऊपर लागू किए जाते, जो कास्ट सिस्टम्स की वजह से जो भी लोगों पर होता है, इसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया. हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, यानी स्त्री पुरुष तुलना मीन्स कंपैरिजन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. ये एक फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक माना जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे औरतों के बारे में सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है. रिटन बाय ताराबाई शिंदे. In 1888, the book written by Pandit Ramabai was published and titled The I Caste Hindu Woman. पंडित रमाबाई का भी किताब एक है, that is I Caste Hindu Woman. The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book, Crossing Thresholds, Feminist Essay in the Social History, is an importance. It contains essay of the life stories of the women like Pandit Ramabai and Dr. Rukumabai, the first practicing lady doctor of India. A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. Dr. Sharmila Rege work is noteworthy in this context. Her book Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies includes her essays on the autobiographies of the Dalit women. Okay, what it is said, the feminist literature of the post-independence era. उन्होंने एक ध्यान दिया द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन्स के एम्प्लॉयमेंट, ट्रीटमेंट मेंटेन आउट टू दम एट द वर्क प्लेस, यानी उनके साथ क्या सुलूक किया जाता था वर्क प्लेस में, द राइट ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये सब. एमंग द रिसेंटली पब्लिश फेमिनिस्ट लिटरेचर थे, उसमें मीरा कौसम्बी के बुक्स थे, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, फेमिनिस्ट एसे था, सोशल हिस्ट्रीज ऑफ द इम्पोर्टेंस, लाइफ स्टोरीज ऑफ पंडित रमाबाई और डॉक्टर
रुकुमाबाई द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी हमें बहुत लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है. ए लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित. इसमें बहुत सारे लिटरेचर मेंशन किए गए हैं जो अभी तक लोगों को पता नहीं था. Now, do you know publications of Marathi Riyasat by Govind Sakaram Sardeshi was the momentous achievement in the field of the Indian historiography. His work became so famous that people began to address him Riyastakar. He published several volumes of Maratha history. Okay, उन्होंने मराठी रियासत के बारे में बाय गोविंद सकाराम काफ़ी सारे अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी में थे, वो सब लिखे थे. तो ही वॉज कॉल्ड एज ए रियासतकार. देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु wrote without embracing the particular ideology. Among them are historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyastakar G.A. Sardesai and Trayambak Shankar Shejwalkar are not worthy. In the recent times, historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to the historiography of modern India. Here are some of the names mentioned over here that you have to keep in the mind who has contributed in the historiography of modern India. Thus, it is evident that Indian historiography has been influenced greatly by the social and the political movements. मतलब आपने जो इंडियन हिस्टोग्राफी है उसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस है, इसमें काफ़ी सारा पता चलता है कि सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या क्या चल रहे थे इंडिया में. इट सीम्स दैट सम पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट. और कुछ ऐसे हिस्टोग्राफी इतिहास ऐसे है जो इसके परे या इससे बाहर भी है. So this was what we had in the historiography Indian traditions. We came to know about the Indian scholars and Indian great peoples who work for the benefit of the peoples, जिन्होंने जो पिछले जाति के लोगों को किस तरह आगे बढ़ाया, उनको बढ़ावा दिया, उनके बारे में जानकारी दिए हमें with their writings and all. And some of the feminists who work for the upliftment of the women's, their achievement and their role in the Indian constitution or their role in Indian formation of Indian formation. Okay, तो ये सब चीज़ें हमें पता चला. We came to know. So we have completed this lesson. I hope you understood this lesson. Please go through this lesson so that you can find it much easier to understand it. Go through the points and all. What are the main points? What are the achievements of everything? Marcus history or subaltern history. What are they? Feminist history related to females and all. Sorry for the problem that I am facing while talking. I hope you understood it. Bye. See you in the next lecture.